Hello, students. I hope you are safe and healthy in the confines of your home. Today, I am here to discuss about understanding the nature of knowledge. So, let's first discuss what is knowledge. ज्ञान क्या है? Knowledge is a meaningful structure of facts into some relationship. ज्ञान जो है ये एक जो तथ्य होते हैं, तथ्यों को लेके तथ्यों के बीच में जो संबंध है उसको उजागर करता है। ये जो तथ्य होते हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, उन अर्थपूर्ण होने चाहिए। दूसरा चीज है ये जो एक ठो तथ्यों का ढांचा या संरचना होता है जो उनके बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। नॉलेज एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स ट्रुथ अबाउट रियलिटी। जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसके पीछे का जो सत्य है उसको वो उजागर करता है। ज्ञान वास्तविकता के पीछे का जो सत्य है उस सत्य को उजागर करता है। इट ब्रिंग्स आउट द ट्रुथ about reality. It reflects the truth about reality. If we take the Indian point of view, we regard knowledge as vidya. अगर हम लोग भारतीय नजरिए से देखें तो हम लोग इसको विद्या कहते हैं। So what is vidya? From the Indian point of view, Vidya involves facts about reality and cognitive. What is cognitive? It is related to the mind. So, what is Vidya? विद्या जो है वो तथ्यों, जो वास्तविकता को लेके जो तथ्य हैं उनको और जो मानसिक स्तर पर जो परिवर्तन होते हैं उन सब को विद्या के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। तो ये जो ज्ञान जो है, अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि मतलब ये तथ्य है, वास्तविकता के पीछे का जो तथ्य है, तो वास्तविकता एक अगर उदाहरण लें, मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि सूरज हर दिन सुबह पूरब से उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो दिस इज अ फैक्ट, ये एक तथ्य है। तो इसके पीछे कोई कारण होगा? ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो उसके पीछे कारण क्या है? द रीजन बिहाइंड इट इज दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ और द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देयरफॉर द सन सीम्स टू राइज from east and then moves on to west. So the spinning of the earth or the rotation of the earth is the reason for our visualizing the sun rising from the east and setting in the west. So there is a relationship. Why the sun rises in the east and sets in the west? And also there is a relationship between this fact and the fact that the earth spins around its own
axis. So there is some relationship, there exists some relationship between the facts. So knowledge is nothing but it is a meaningful structure of facts into some relationship. The facts are not as isolated ones. They have some relationship between themselves. So this reflects the truth about the reality. The reality is that the sun rises in the east, and the truth is that it is due to the spinning of the earth on its axis. So there are certain questions related to knowledge which comes to our mind, or which we need thinking and reflection. Firstly, what is truth? सत्य क्या है? What is falsehood? असत्य क्या है? In what manner the truth can be differentiated from the falsehood? सत्य और असत्य के बीच में हम लोग अंतर क्या है, या फिर अंतर को हम लोग कैसे उजागर कर सकते हैं? Can human knowledge acquire real knowledge? Another question that arises in our mind is that to what extent can man acquire the knowledge of the Supreme? Here, a Supreme refers to the power beyond human intelligence. Another thing is, if there is knowledge, what are the sources of knowledge? What are the types of knowledge? And what are the theories of knowledge? A lot of things come into our mind. So let's first see let us discuss what is knowledge. To delve into this, if we see the dictionary meaning of knowledge, in the dictionary we find knowledge means belief, it means information. अगर हम लोग डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं तो उधर नॉलेज का मतलब रहता है विश्वास, जानकारी, इंस्ट्रक्शन, एनलाइटनमेंट, लर्निंग, अधिगम, प्रैक्टिकल स्किल्स, जो कौशल हैं वो आपको डिक्शनरी में इस तरह के जो है मीनिंग मिलेंगे. दैट विच इज़ नोन. So let us first see, to understand this concept of knowledge better, let us first discuss what is the nature of knowledge and what are the characteristics of knowledge. जो ज्ञान है उसके क्या लक्षण हैं और उसके विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है, इसको हम लोग पहले चर्चा करेंगे. फिर हम लोग इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ज्ञान जो है वो क्या है. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज. नंबर 1, नॉलेज इज अ मीन्स टू रीच ट्रूथ. तो ज्ञान क्या है? ये एक माध्यम है, सत्य तक पहुंचने का एक माध्यम है. सत्य जो है वो हमेशा से वो अनचेंजेबल रहता है. वो किसी भी परिस्थिति, किसी के समय के अंतराल में वो बदलता नहीं. सत्य जो है हमेशा सत्य रहता है. तो इस सत्य तक पहुंचने का ये एक माध्यम है.
knowledge is the means to reach the truth. Secondly, thought is the raw material for knowledge. जो चिंतन है, जो विचार है, जो हम लोग सोचते हैं, तो दैट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर नॉलेज. तो वो एक ठो आधार जो है, कच्चा माल बोल सकते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते. So, thought is the raw material for knowledge. Language is the vehicle of knowledge. जो भाषा है वो एक वाहन की तरह काम करता है ज्ञान के प्राप्ति में. कैसे? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग कुछ सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं. जो जिस भाषा में बोलता है या फिर जिस भाषा को जो व्यक्ति समझता है, जिस भाषा को समझता है या जिस भाषा को में वो निपुण होता है, वो उसी भाषा में सोचता है. अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश से हैं या फिर मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप हिंदी में सोचते हैं. और जिसकी मातृभाषा मान लीजिए कोई इंग्लैंड से है जिसकी मातृभाषा इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में सोचता है. या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं, निपुणता है जिसमें, आप उस भाषा में सोचते हैं. आपके जो विचार या फिर आपके जो चिंतन है उसी भाषा में होता है. आप कभी ध्यान दीजिएगा कि आप किस भाषा में सोचते हैं. तो लैंग्वेज इज़ द व्हीकल ऑफ नॉलेज. तो भाषा बहुत ज़रूरी है चिंतन के लिए, भाषा का ज्ञान, और चिंतन जरूरी है ज्ञान के लिए. नॉलेज इज सर्टन. ये निश्चित है, ये बदलता नहीं है. जो सत्य है, जो ज्ञान है, वो निश्चित है, वो सर्टन है. इट इज़ वेरीफाइबल. नॉलेज इज़ वेरीफाइबल. आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं. आप इसको प्रमाण कर सकते हैं. जो फैक्ट्स होते हैं, जो नॉलेज होते हैं, इट कैन बी वेरीफाइड. आप आज वेरीफाई किए हैं, बाद में और कोई उसको वेरीफाई कर सकता है, उसको प्रमाणित कर सकता है. और एक चीज़ है, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, टर्म्स, कंसेप्ट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज. जो ज्ञान है उसका जो बुनियादी या फिर आधार जो है वो क्या है? शब्दों के अर्थ. ये जो है अवधारणाएं हैं वो सब जो है एक आधार, एक ठो बुनियाद प्रदान करते हैं ज्ञान को. तो these form the foundations of knowledge. meanings of words, terms, concepts, ये सारा चीज़ जो है ये ज्ञान को एक ठो आधार प्रदान करते हैं. और एक चीज़ है, the structure of knowledge is based on facts and values. तो ये जो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, एक तो संरचना है, ढांचा है, जो जिसका आधार क्या है? फैक्ट्स एंड वैल्यूज़. जो तथ्य हैं और जो मान्यताएं हैं वो उसके आधार है, ज्ञान के आधार हैं. ये दोनों जो है ज्ञान के आधार हैं. नॉलेज इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ मीनिंगफुल होल. तो ये जब इतना सारा चीज़, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं हम लोगों ने देखी, अभी चर्चा की, जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ज्ञान के, और जो प्रकृति है देखे, इसके बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉलेज इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ मीनिंगफुल होल. तो ज्ञान क्या है? ये जानकारियों का एक ढांचा है, एक संरचना है,
जिसका जो कि अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो जब इनको हम लोग when we arrange it into a well organized system of facts giving meaning to it, हम लोग इसको एक तो व्यवस्थित संगठित ढंग से जब तथ्यों को हम लोग एक जगह करते हैं, तथ्यों को एक संगठित रूप देते हैं, एक व्यवस्थित रूप देते हैं जो कि अर्थपूर्ण है, तभी ये ज्ञान कहलाता है। So knowledge is a well organized system of facts giving meaning to it. तो आज हम लोगों ने देखा कि ज्ञान क्या है और what is knowledge and what are its characteristics, what is its nature. So students, I hope you will benefit from this lecture of mine. Thank you.